बाणी दादू साहेब जी। साईं सत संतोख दे पाव भगत विश्वास सिदक सबूरी साच दे मांगे दादू दास। साईं सत संतोख दे पाव भगत विश्वास सिदक सबूरी साच दे मांगे दादू दास। ये बाणी दादू साहब दी है। दादू साहब जी बड़े कमाई वाले फकीर होए है। उन्हां दी बाणी बड़ी ला धड़क है। दादू साहब जी दुनिया दी कोई चीज़ मंगी नहीं, पर जो सुख देने वालियां चीज़ां सी सारियां मंग लईं। सब तो पहला दादू साहब जी फरमाउंदे है कि है साईं मैनू सत दे। परमार्थ दी जिहड़ी नहीं मजबूत वो सत है। जिस तरह असी किसी मकान नू बनाना हुंदा है तो उहदी बुनियाद जिहड़ी है मजबूत रखते हैं। किस वास्ते कि जे परमात्मा सानू तबीक देवे तो असी होर तरक्की कर सकीए। इसी तरह फकीरां दी मजबूत नी जिहड़ी बुनियाद जिहड़ी है वो सत है। कबीर साहब जी महाराज भी बाणी जी फरमाउंदे है सत गया तो क्या रहा, सील गया सब झाड़, भगती खेत कैसे बचे, टूट गई है बाढ़। कबीर साहब जी महाराज फरमाउंदे है जब किसी खेती की बाढ़ टुट जाती है वो खेती मिर्ग खा जाते। दुनिया की खेती जिहड़ी बीजी होंदी वो मिर्ग खा जाते है। इस तरह जदों इस जीव की वो खेती अंदरली कमाई है जदों वो सत बाढ़ टुट गई तो कमाई खाधी गई। दादू साहब जी बाणी विच फरमा रहे हैं कि है साईं है मेरे मालिक मैनू सत दे। नाल उन्हां सत दे संदोख मंगे। साईं सत संदोख दे भगत भाव विश्वास सिदक सबूरी सांच दे मंगे दादू दास। सारियां चीज़ां जिहड़ियां परमार्थ दे लैक सियां जिन्हां दे नाल असी परमार्थ कमा सकते हाँ, जिन्हां चीज़ां नाल असी सुख लै सकते हाँ वो दादू साहब ने मंग ली, पर दुनिया की कोई चीज़ नहीं मंगी। दादू साहब जी दे विच वो शक्ति सी। एक बार दादू साहब दे पास कोई 5-4 बंदे नाम लैन वास्ते गए, पर दादू साहब जी नूं उन्हें देखा नहीं सी, सिर्फ तारीफ सुन के चला गए। ते दादू साहब जी सुबह सुबह का टाइम सी, बाहर लोटा लिया पानी का तो बाहर अंदर जा रहे सन। वो चारे बंदे जिहड़े सी मिल पे ते दादू साहब जी नंगे सिर सन। उन्होंने कहा कि सानू सगन चंगा नहीं होया। उन्हें दादू साहब नूं जुत्तियां मारियां जुत्तियां मारियां कि सगन चंगा नहीं होया, सगना बंदा सानू मिलिया है,
ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਕੜਾ ਜਾਂ ਟੋਕਰੀ ਖਾਲੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਆ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਗਾਹਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਗਡੰਡੀ ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਛਾਣਦੇ ਆਏ ਕਿ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਬੁਲਾਇਆ, ਬੈਠੋ ਜੀ, ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਪਾਸੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ। ਆਖਰ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਟਕੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟਣਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਛੱਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਟਣਕਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਸਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਤ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਦੋਖ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ, ਸਿਦਕ ਦੇ, ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਐ ਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਤੇਰੇ ਪਾਸ। ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀਏ ਉਸ ਭਗਵਾਨ ਪਾਸੋਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲੈ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹ ਪਰਮਾਰਥ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਈਂ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੇ, ਭਾਵ ਭਗਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਿਦਕ ਸਬੂਰੀ ਸਾਚ ਦੇ, ਮੰਗੇ ਦਾਦੂ ਦਾਸ। जीवन माटी हो रहो, साईं सन्मुख होए, दादू पहले मर रहो, पीछे मरे सब कोए। दादू साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है
कि उस मालक दे पाण वास्ते फरमा रहे है कि सानू की करना चाहिए। जीवन माटी हो रहो साई सन्मुख होए। ऐ दादू मिट्टी की मिसाल देती है कि मिट्टी किसी नू कुछ नहीं कहती। मिट्टी दे उत्ते असी घर दे जो गलत चीज़ां गंदियां होंदियां वो असी सुटते हैं और गड्डियां मोटरां चलदियां हर एक चीज़ चलती है, लेकिन वो मिट्टी कुछ नहीं कहती। दादू पहले मर रहो पिछे मरे सब कोई। उन्हां दा मकसद की कि तू खाशां छड़ दे, आशा वाशना छड़ दे। जब तू ये खाशां छड़ देगा तू दुनिया वालों मर गया और तेरे पीछे मरे सब कोई। ये तरीका उस मालक दे पाण दा। कबीर साहब जी महाराज दी माता ने कहा, ऐ कबीर तरना बुनना छड़ दिता। ऐ कबीर तरना बुनना छड्या और हर का नाम वसा लिया शरीर। तरने बुनने नू छड़ दिता तू, हर का नाम तू शरीर च बसा लिया। तरना बुनना साडा दुनिया दा, असी तमाम तरना बुनने विच फसे है। कोई बंदा खाली नहीं, ना साडा ये मुकदा है ना साड़ी जान छुटदी है। मैं कई बार अगे दस्या है कि असी इस चीज़ नू पूरा करते ही दुनिया तो चला जाते हैं। एक फकीर ने फरमाया कि दुनिया की चादर ऐसी है, जे तुसी सिर खटो तो पैर नंगे है, जे पैर खटो तो सिर नंगा। ये पूरी होंदी नहीं और असी इस नू पूरी करदियां दुनिया तो चला जाने। लेकिन ये पूरी ना हुई, ना किसी कीती, ना होनी। जो महापुरख बाणी जी फरमाउंदे है ठीक है। ऐ दादू तू मिट्टी हो जा। फरीद साहब ने मिट्टी का भी कदर किया। फरीद साहब जी फरमाउंदे है, खाख नू ना रदिए निंदिए खाख जेड़ा ना कोए। जिउंदियां पैरां थले मोयां उपर होए। ऐ फरीद इस खाक नू भी तू नहीं निंद, ये भी काम देगी, इहदी भी तारीफ कर। जिउंदियां साडे पैरां दे थले है ते जदों असी मरदे हैं साडे उपर इस दे खाक दे नाल ही साडा शरीर जिहड़ा ये ढकिया जांदा है। तुसी कोई चीज़ कुत्ता बिल्ला मर जाता है, कोई अपने घर दा असी उहनूं जमीन दे विच दबदे हैं और मिट्टी नाल उहनूं कजदे। जे पोला रह जाएगा इहदे च बदबू आएगी। कोई पशु है बंदा है कबरां कट के उसनूं दबीदा है, उत्ते उस दे मिट्टी देदी। फरीद साहब ने इस खाक नूं भी कहा कि ऐ फरीद तू खाक नूं भी ना निंद। खाक जेबड़ ना कोई जीवदियां पैरां थले मोयां उपर होए। देखो फकीरां दा नज़रिया, फकीरां दी विचार जिहड़ी किड्डी उच्ची हैगी। ते असी एक महापुरखां दी निंदिया करदे हां, महापुरखां दी निंदिया करदे हां। फरीद ने कहा खाक नूं भी ना निंद, ते असी महापुरखां दी भी निंदिया करदे हां। साडी कल्याण किदां होएगी, असी किदां बच सकते हैं। जो दादू साहब जी बाणी जी फरमा रहे ठीक फरमा रहे। जीवन माटी हो रहो साई सन्मुख होए। दादू पहले मर रहा
पीछे मरे सब कोए दातू दावा दूर कर निर्दावे दिन काट केते सौदा कर गए पंसारी के हाट। दादू साहब जी जो फरमा रहे ठीक फरमा रहे है। दावा कहते है हंकार माननो ते असी हर एक इंसान किसी न किसी चीज़ का हंकार करते हैं। कोई हंकार सज्जना मित्रां का करता है, कोई परिवार का करता है, कोई दौलत माया का करता है, कोई अपनी अकल शकल का करता है। तो दादू साहब जी फरमा रहे है कि ऐ दादू तू दावा ना कर, किसी भी चीज़ का दावा ना कर, बगैर दावे दिन कट। जिस चीज़ का भी तू दावा करदा है पहला उसनू जजमेंट करके ये क्या तेरे साथ जाएगी या तेनों कोई फायदा देगी, तेनों कोई फायदा दे सकती है, कोई तेरी मदद करेगी। कई बार दस्या कि एक शाहूकार सी, उस दे पास 4 करोड़ रुपया सी। 4 करोड़ रुपया सी जिहड़ा उसने कमा के जमीन च दबिया ते उसने कदी किसी गरीब का हथ नहीं वटाया, अपने शरीर नूं भी सुखी नहीं रखिया, अपने शरीर ते भी नहीं खर्चिया कदी, और कदी किसी राह रस्ते ते नहीं लगाया। जदों आखिर समा उसदा आया तो जमदूत आ गए। उन्होंने जमदूतों ने फड़ लिया, उसनू कुट मार करना शुरू की। हुण वो सोचता है कि ये डाकू मेरे घर आ गए, ये डाकू आ गए है तो चलो इन्हों थोड़ी माया बिचों दे देंगे हाँ, ये मैनू छड़ देणगे। शाहूकार कहता है भाई इस तरह करो, तुसी 1 करोड़ मेरे पासों रुपया ले लो तो मैनू छड़ दो। उन्हें साह लैके ते फिर उसनू कुटिया। जदों बंदे दे सिर ते आ जाए कोई मुश्किल, उस वक्त बंदा कहता कि मेरा घर खुला भी बिक जाए, भावें मेरी जान बच जाए। पहला इसे शरीर नू जिदा बेलने दे विचों कोई चीज़ नू कढ़दा है, इस तरह कढ़ के मुश्किल नाल उस चीज़ां नू बनाउंदा है, लेकिन ज़्यादा शरीर ते आ जाती है। फिर ये कहता है कि सब कुछ दिता जाए तो शरीर बच जाए। फिर उन्होंने कुटिया, जिसले कहन लगा इस तरह करो तुसी मैनू मारो ना, 2 करोड़ रुपया तुसी ले लो ते मैनू छड़ दो। हुण देखो मार मार के मोह तोड़ रहे है। जिस तरह साडा एक कोई दरख्त की मिसाल ले लो, दरख्त खड़ा होंदा है तो छोटियां छोटियां जड़ां उसदियां आसे पासे छाइयां होंदियां ने। अगर वो जड़ां ना होण तो दरख्त खड़ा नहीं रह सकता। तो जदों किसी ने उस दरख्त नूं कटना है तो उस दियां पहलां जड़ां कट्टियां जांदियां ने, उस दे गिराण वास्ते जड़ां की जरूरत है, जड़ां कट्टणियां ने। इसे तरह साडे मोह नूं तोड़ रहे। फिर उन्होंने साह लैके थोड़ा फिर उसनूं कुट मार की। फिर वो कहता भाई इस तरह करो, मेरे पास 4 करोड़ रुपया है, 1 तुसी रहन दो तो 3 लै जाओ। उहदे वास्ते यही भी मेरे डाकू आए, ये नहीं पता कि जमदूत है। उन्होंने फिर उन्होंने थोड़ी रेस्ट दी, फिर उसनूं पकड़ के उन्हें कुट मार की।
फिर सोचदा कि इनू सारी माया दे दईए, जान बच जाए, किते मंग छुप के या मजदूरी करके खा लवांगा। मैं क्या मेरे पास भाई 4 करोड़ रुपया है, ये तुसी सारा ही लै लो, मेरी जान छड्ड दो। वो जमदूत कहते हुण नहीं असीं तैनूं कुछ भी कहते, हुण तैनूं कुछ नहीं कहते, असीं जमदूत हाँ, तेरी रूह आत्मा नूं लैण वास्ते आए हैं, पर तेरा मोह जिहड़ा सी वो इन्हां पैसिਆਂ ਵਿੱਚ माया ਵਿੱਚ फसिया सी, तू इनू छड्डदा नहीं सी। असी कुट मार करके तेरा मोह इहदे चों छुड़ाया, हुण असी तैनूं लै जाना है। कहंदा मैं हुण चले जाना दुनिया तो? जमदूतां ने कहा हाँ तू चले जाना, असी लैण आए तैनूं, कुछ थोड़ी बहुती छुट्टी देंदे हो कि मैं इस माया नाल थोड़ी बहुती गल कर लवां। कहंदे कर लो। जिथे माया उसने दबी सी जमीन विच, उत्थे जाके कहंदा हे माया देख मैं तैनूं किस तरह कमाया सी, और मैं किसी राह रस्ते ते नहीं तैनूं लाया, अपने शरीर ते भी नहीं कदी खर्चिया, बड़े दुखी हो के मैं तैनूं कमाया। आज मैं दुनिया तो चलिया, तू मेरी थोड़ी बहुती मदद कर। उतों आवाज आई कि ओ पापिया तू साडे अखां तो दूर हो जा, साडे कोलों दूर हो जा, तू बहुत पापी दुष्टी है, जद ही असी तेरे घर आया तू सानू हवा ही नहीं लवाई, तू ऐसा सानू जमीन दे थले रखे, सानू हवा ही नहीं दुनिया की लवाई, तेरी असी गवाही देवांगे, तैनू कोर नरक विच सुटिया जाए, ये तेरी गवाही देवांगे। हुण दादू साहब जी जो बाणी जी फरमा रहे है, ठीक फरमा रहे है। ऐ दादू तू दावे नूं दूर कर, बिन दावे दिन कट, बगैर दावे दिन कट, किसी चीज़ का दावा ना कर। ना तू अपनी दौलत माया का दावा कर, ना सज्जना मित्रां का दावा कर, ना तू अपने परिवार का दावा कर, ना ही अपने शरीर का दावा कर। ये भी शरीर एक संतां दस्या है कि पानी का बुलबुला है, जिस तरह पानी दे विच बुलबुले उठते हैं, मिनटां च खत्म हो जाते हैं। ये उस परमात्मा की माया उहदी इमानत है, की पता किहड़े वेले उसने लै जाना। तू काहदा दावा कर रहा है, की गारंटी है इसकी? पर असी दुनिया विच इसे गल च मर रहे हैं कि असी कोई ना कोई हंकार साडे विच रहिंदा है, किसी न किसी चीज़ का जरूर असी हंकार करते हैं, असी उहनूं छड्डदे नहीं। तो महापुरख फरमा रहे है कि बिन दावे दिन कट, किसी चीज़ का तू दावा ना कर तो दिन कट इत्थे। हाँ जी। दादू दावा दूर कर, निर्दावे दिन काट, केते सौदा कर गए पंसारी के हाट। इस संसार नो दादू साहब ने एक पंसारी का हट दस्या है कि भाई ये पंसारी का हट, जिस तरह पंसारी की दुकान होती है, उत्थे कई सौदा लै जाते हैं, कई लैन आते हैं, वो हट उस तरह बनया रहिंदा है। उस तो कोई भी जिसले मर्जी कोई चीज़ लैन जाए, किते ना मिले जिहड़ी चीज़ वो पंसारी दे हट तो मिलती। दादू साहब जी फरमाउंदे ऐ दादू, ये संसार जिहड़ा
ये पंसारी का हट है। जिस तरह पंसारी का हट चलता रहिंदा है, इसी तरह ये संसार भी चलता रहना। कई बार हजूर फरमाउंदे हुंदे गड्डी का स्टेशन समझ लो, कई सवारियां चला गई, कई उत्थे जमा हो गई। स्टेशन ते हमेशा रौनक रहिंदी है। इस संसार तो कई चले जाना, कई आ जाना। जिन्हां लोगों ने देखा है 47 च जो गदर होया, जिन्हां देखा है उन्होंने पता है कि की होया। असी ये सोचते हाँ कि जितने पशु मरे है, ये पशु ही दुनिया तो कित्थों लैने है। इन्ने खत्म होए सी और इन्ने बंदे, फिर वो रचना उन्नी रही। द्वापर दे विच जदों पांडवां दा जंग होया ते उन्हां दीयां कुलां खत्म हो गई, बिचे गुरु पीर खत्म हो गए, लेकिन ये संसार फिर उस तरह रहा, ये रचना उस तरह रही। ये पंसारी का हट दस्या है कि ये पंसारी का हट है भाई। ये पंसारी के हट से किते चीज़ ना मिले तो पंसारी के हट तो मिलती है। जिसले भी मर्जी कोई चला जाए उतों लै आवे। कई इत्थे लैके चला गए और कई आ गए, जे जे सौदा किया वो लैके चला गए। हाँ जी। दादू दावा दूर कर निर्दावे दिन काट केते सौदा कर गए पंसारी के हाट। दादू दावा याद का निर्दावा कैसा दिल की दुर्मत दूर कर सौदा कर ऐसा। असी सारी दुनिया ये कहते हैं कि असी किसी चीज़ का मान नहीं करते, किसी चीज़ का असी हंकार नहीं करते, पर दादू साहब जी फरमाउंदे है कि ऐ दादू दावा दूर कर निर्दावे कैसे, दिल की दुर्मत दूर कर सौदा कर ऐसा। भाई जब तेरे दिल की दुई दुर्मत दूर नहीं होएगी तो समझ लेना कि दावा है, जरूर किसी किसी चीज़ का अहंकार है। जदों तेरे दिल चो दुई निकल जाएगी तो समझ लेना है कि ये नरोल हो गया, कोई किसी चीज़ का दावा नहीं। दादू साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं। दादू साहब की बाणी बड़ी नरोल बाणी है। हाँ जी। दादू दावा याद का निर्दावा कैसा दिल की दुर्मत मत दूर कर सौदा कर ऐसा। फकीरां दा प्यार जिहड़ा हुंदा है उस प्रभु नाल लगा हुंदा है। वो शब्द ही लज्जत लैंदे है, पर धोखे वाले फकीरां नूं ठगण वास्ते कई ऐसे धोखेबाज हुंदे है। कई बार अगे भी दस्या है कि नामदेव जी महाराज एक बार दरिया के किनारे कपड़े साफ कर रहे सन ते उन्हां दी लिप जिहड़ी सी उह शब्द नाल लगी सी। अपने ध्यान च काम कर रहे सन। उन्हां नूं पता नहीं कौन आया कौन गया इस रस्ते। एक राही आया, उसने उहदे पास लागे कपड़े खोले अपने ते लक चों थैली खोली रुपइयां दी
पिछले जमाने दे विच ਉਹ थैलियां लम्मी लम्मियां ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੰਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਰਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਲੱਕ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਵੀ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਸਨ ਵਿਛਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸਾਧੂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਾਧੂ ਫਟਾਫਟ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਸਨੀ ਜਿਹੜੀ ਥੈਲੀ ਸੀ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਫੇਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੋਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਨਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲਾਣ ਲੱਗਾ ਉਸਨੂੰ ਥੈਲੀ ਨਾ ਲੱਭੀ ਉਸਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਥੈਲੀ ਲਈ ਹੈ ਨਾਮਦੇਵ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਦ ਆਇਆ ਕੌਣ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਥੈਲੀ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਉਰਾਈ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਕਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਥੈਲੀ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਧਰੂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਖਿੱਚੇ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਖਿੱਚੇ ਨਾਮਦੇਵ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੱਜਤ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲੱਜਿਆ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਥੈਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਲਈ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਆਸਨ ਉੱਡ ਕੇ ਪਰਾਂ ਜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਪਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਥੈਲੀ ਉਹਦੇ ਆਸਨ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਨਤ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਓਏ ਮਹਾਤਮਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਚੋਰ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਸੀ ਉਹ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪ ਹੈ ਔਰ ਬਦਨਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ ਖਾਸ਼ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ਼ ਆਈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬੈਂਤਰ ਲੈ ਲਈਏ ਕੋਈ ਘੋੜੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਜਾਈਏ ਕਰੀਏ ਘਾਟ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਚੜ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਈਏ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਖਾਸ਼ ਕਈ ਦਿਨ ਸਤਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਅਵਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਇਆ ਦੀ ਘੋੜੀ ਬਣੀ ਉਹ ਘੋੜੀ ਰਾਹ 'ਚ ਸੂ ਪਈ ਉਧਰੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਮੇਰੀ ਬਸ਼ੇਰੀ ਚੁੱਕ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲ ਉਹ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹ ਬਸ਼ੇਰੀ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਵੀ ਭਾਰਾ ਸੀ ਸੋਚਦਾ ਸੋਚਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਕਿ ਘੋੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ
ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੀ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਘੋੜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਘੋੜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖਾਸ਼ ਖਤਮ, ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਪਈ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਘੋੜੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਬਸ਼ੇਰੀ ਰਹੀ, ਨਾ ਅਫਸਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਚਾਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਅਸ਼ਰਤ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਅਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੂੰ ਐਸ਼ੋ ਅਸ਼ਰਤ ਨਾਮ ਜਪ। ਪਰ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਰੋਂ ਬਾਰ ਕਵੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਅਸ਼ਰਤ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਤਮਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸੀ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ, ਇੱਕ ਕਟੰਜਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਗਮੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸੁਬਾਹ ਸੁਬਾਹ ਹਾਥੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਾਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਉਹ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਟੰਜਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਬਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਰਾਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਅੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਂ ਨਾ ਲਈ ਮੇਰਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਟੰਜ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਵਾਨਾ ਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਜੋਸ਼ਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਟੰਜ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਚਿਖਾ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰਿਆ? ਹਾਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਜਿਹਨੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਗ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਤਨਾ ਮੇਰਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਗਮੀ ਆਈ। ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਵਾਕਫ ਲੱਭਣ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਲੇਗ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਮਰਿਆ ਵੀ ਐਸੀ, ਸਾਰਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜਲ ਕੇ ਮਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਾਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਬੂਤ ਲਿਆ ਤੋ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਸੜਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸ਼ੋ ਅਸ਼ਰਤ ਦੱਸੋ। ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਐਸ਼ੋ ਅਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਵੱਜੇ, फिर तेरी शादी हुई, फिर खुशी हुई, फिर तेरे घर औलाद हुई, बाल बच्चा होया, फिर खुशियां हुई, फिर वो मर गए, फिर गमी आ गई। फिर तू राजा बनया, फिर तू मर गया। पहला राजा बनया, खुशी हुई, फिर मर गया, फिर गमी आ गई। यही दुनिया की ऐशो अशरत और की है? कोई कसर तो नहीं रही है। मुर्शद ने उसनू बचाने वास्ते सब कुछ सुपने दे विच भुगता दिता कि यही दुनिया की ऐशो अशरत है, दुख और सुख। ये सहजो बाई ने भी फरमाया बाणी दे विच कि जिस तरह लोहे की सनी लोहार दी हुंदी है, इस तरह सहजो दुनिया के दुख ते सुख ने कि जदों वो किसी संद नूं लोहे नूं फड़दा है लोहार उस सनी दे नाल, ते जदों वो तप जांदी है उहनूं पानी च सुट दिंदा, पानी च डोब लैंदा, ठंडी कर लैंदा, पानी च ठंडी करके फिर उस अंगीठी च पा दिंदा, फिर वो अग वर्गी हो जांदी, हत्थ जदों नहीं पैंदा फिर ठंडी कर लैंदा। ऐ सहजो ये दुनिया का दुख और सुख। ऐसा जो दुनिया विच इस तरह रहो जिस तरह मुख दे विच जीव है। सहजो बाई ने बड़े अंदाजे दसे क्योंकि बहुत कमाई की सहजो बाई ने। तू दुनिया विच रहना है इस तरह रहो जिस तरह मुख च जीव है। जीव देखो खाने नूं बल के दंदां दे थल्ले लियाउंदी है लेकिन आप नहीं आउंदी। सारे खाने नूं वल के दंदां थल्ले लियाउंदी है। दंदां दा काम है कि बरीक करना खाने नूं। खाने दा स्वाद तद ही बनदा है जदों खाना बरीक हुंदा है। जे खाना बरीक ना होवे तो उहदा कोई स्वाद नहीं हुंदा। जदों वो बरीक हो जाता है तो फिर जीव जिहड़ी अपने ते लै आउंदी है, उसका जायका जिहड़ा स्वाद वो फिर जीव दसदी है। ऐसा जो इस तरह संसार विच रहो कि जिस तरह जीव बत्तियां दंदां दे विच रहिंदी है और इतनी चुस्त चलाक है कि सारे खाने नूं बल के दंदां दे थल्ले लियाउंदी है लेकिन आप नहीं आउंदी। जे बाई चांस किते दंद लग भी जाए तो इनू नानके चेते आ जाते हैं बंदे नूं बाई चांस लग जाए तक। इस तरीके नाल सहजो बाई कहती है कि संसार च रहो, रहना इस दुनिया विच है। देखी किते इस दुनिया के काबू ना आ जाई, ये च मिक्स ना हो जाई। जे इहदे विच मिक्स हो गया तो बस फिर गया, फिर नहीं बच सकता। इतना चुस्त चलाक हो के इहदे विच रहना दुनिया च कि इथों बच भी जाना है, खाना भी खा जाना और बच भी जाना। हाँ जी।
दादू दावा याद का निर्दावा कैसा, दिल की दुर्मत दूर कर सौदा कर ऐसा, नाही तहाँ से सब हुआ फिर नाही हो जाए, दादू नहीं हो रहो साहिब से लौलाए। दादू साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं कि ऐ दादू जो कुछ भी तू करना है वो ऐसे जन्म दे विच करना है, ऐसे जन्म दे विच तू कर सकदा है और किसी जन्म विच नहीं तू कर सकता। जो कुछ होना हुणे होना है, इस तो बाद कुछ नहीं। जद असी 84 भी चला गए, 84 के कुत्ते बिल्ले कीड़े मकोड़े पशु परिंदे भूत प्रेत बने, फिर असी की करांगे? क्या असी मालक की भगती कर सकते हैं? कोई नेक पाक कर्म कर सकते हैं? की कर सकते हैं फिर असी? इस वास्ते दादू साहब जी फरमाते हैं कि जो होना दादू होने होना जी, ऐसे जन्म दे विच कर ले जो कुछ करना है, फिर कुछ नहीं होना। हाँ जी। ना ही तहाँ से सब हुआ फिर नहीं हो जाए, दादू नहीं हो रहो साहिब से लौलाए। उपजे बिन से गुण तरे ये माया का रूप, दादू देखता थिर नहीं छिन छाया छिन धूप। दादू साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे है कि ऐ दादू ऐ दुनिया दी माया जिहड़ी है ये तू देख, ये दरख्त दा शौरा है। जैसा एक दरख्त सुबह ओदा शौरा किधर हुंदा है, 12 बजे नूं किधर हुंदा है, शाम नूं किधर हुंदा है। इस तरह उपजे बिन से कदी आ जाती है, कदी ये चला जाती है। जिथे चला गई उत्थे खुशियां हो गई, जिथों चला गई उत्थे चिंता पै गई। ये दरख्त दा शौरा है। ऐ दादू इहदे ते भी ना तू बैंस, इहदे ते नाल भी तू मोह ना पा, क्योंकि रहन वाली चीज़ ही नहीं, ना किसी दी रही ना किसी कोल रहनी है। छिन छाया छिन धूप, छिन दे विच छाया बन जाती है, छिन विच उत्थे धुप आ जाती है। इसे तरह जिथे चला गई उत्थे खुशियां हो गई, जिथों चला गई उत्थे रोना पिटना पै गया। ये दुनिया की खुशी हैगी। हाँ जी। उपजे बिन से गुण तरे ये माया का रूप, दादू देखते थिर नहीं छिन छाया छिन धूप। विपत पाली गुर संग में काया कसौटी दोख, नाम बिना किस काम के दादू संपत सोख। देखो महापुरखों की विचार केडी उची हैगी है। दादू साहब जी फरमा रहे ने अगर कोई विपता भी हो जाए, कोई तकलीफ भी आ जाए, पर सतगुर दा संग ना छड्डे, सतगुर दी शरण रहे,
दुख भी आ जाए, अगर कोई सुख आ जाए तो नाम नहीं तो उस सुख नूं की करना है? वो सुख किस काम दा है? जिस तरह बाणी जी फरमाया, कखां की झोंपड़ी भली या हर गुणवाए गाए, आग लगे बहुत हौल रे या हर वसराए। कखां की झोंपड़ी चंगी है जिथे परमात्मा का नाम लिया जाए। जे बड़े महल मनारे होणगे तो परमात्मा का नाम नहीं होएगा तो किस काम है? की फायदा उसका? नाम जपत कन्या भली, साकत भला न पूत, ज्यों शेरी कर मेमने, ना दूध ना मूत। महापुरखों के अंदाजे विचार बड़े उच्चे है कि नाम जपदी कन्या भी चंगी, पुत्र होएगा साकत होएगा, माड़े कर्म करता होएगा, चोरियां ठेंगे, उसका की फायदा है? जिस तरह एक बकरी दे गल थले थन होंदे है, ना उहदे च दुध है ना पेशाब मूत्र है, कुछ भी नहीं है, कोई फायदा ही नहीं उन्हों का। ये हालत गुरु साहब जी फरमा रहे कि अगर विपता भी आ जाए, कोई दुख आ जाए तो सतगुर दी शरण ना छुटे। भाई जे सुख आ जाएगा तो नाम नहीं पास होएगा तो की वो सुख का की फायदा है? वो सुख का कोई फायदा नहीं है। हाँ जी। विपत पली गुर संग में, काया कसोटी दोख, नाम बिना किस काम के, दादू संपत सोख। क्या मुख ले हंस बोलिए, दादू दीजे रोए, जन्म अमोलक अपना, चलाया कारथ खोए। दादू साहब जी बड़े प्यार दे नाल फरमा रहे हैं, क्या मुख ले हंस बोली, दादू दीजे रोए। जदों विचार कीती, जिंदगी दी विचार कीती कि कद असी पैदा होए, कितनी साड़ी उम्र हो गई, कि कोई असी चंगा काम भी कीता है, कोई मालिक दी भगती, कोई परमार्थ कमाया? असी हिसाब नहीं करते। जे असी अपनी जिंदगी का हिसाब करिए तो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ही रोना आ जाएगा कि असी सारे अफसोस करांगे, पर असी हिसाब नहीं करते। दादू साहब जी फरमाउंदे आ, क्या मुखले हंसीए, किहड़े मूँह दे नाल हसीए, खुशी होईए, कोई चंगा काम नहीं कीता, कोई अच्छा काम नहीं कीता। दादू साहब जी रोए, जन्म अमोलक अपना, चले अकारथ खोए। ऐ मोलक जन्म, जिस जन्म की कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं, असी इस नूं बर्बाद करके चले हाँ। जिस तरह हजूर कई बार ये साखी फरमाउंदे होंदे सी, कोई जिमीदार सी, वो अपनी जवार की राखी कर रहा सी, कमानी दे राह पत्थर छोटे छोटे लैके या मिट्टी के गोले वट के उन्होंने कां डाउने। कुदरती एक दिन उस खेत दे विचों खोददियां उसनूं एक भांडा लालां दा लभ गया, तो सोचता है किस्मत कित्थों लाए बंदा, सोचता है कि हुण मेरे 4 दिन लंघ जाने हैं। वो लाल छुट छुट जिहड़े आए सी उन्हां नूं कमाणी राह कमाई जावे, कावां नूं डाई जावे। एक लाल रहिंदा सी ते घर दा लड़का उहदा आया कि पिता जी पैसे दिओ, साडे घर निमक नहीं है। उन्होंने उसने वो लाल दे दिता कि जा किसी बाणीए नूं दई, दुकानदार नूं, ते बड़ा सोहना पत्थर हैगा, अध पा या पा जिन्ना भी बनता है बना लेगा, बड़ा सोहना गोल हैगा,
चमकदा है तो तैनूं निमक दे देगा। हुण जद बाणिया दे पास गया तो वह कहता इहो जे मेरे को बथेरे पे है, मैं की करना है, निमक हो भी ना देवे। पर बाणिया नूं की पता लालां दी जवारा, ये जवारियां नूं पता हुंदा है। कोई जवारी बच्चा कोलों दी लंघ रहा सी, उसने देखिया वो लिशकदा, उसने सोचे लाल ते बिकन कित्थे आ गया। उसने उस लड़के नूं पुछया भाई तू की लेना है? कहते जी साढ़े निमक है नहीं। उन बाणिया नूं कहा कि जिन्ना कहता पा दे उन्होंने दे दो। वो लाल बाणिया ने उसने ले लिया, सौदागर सी जेड़ा, ते एक रुका लिख के दे देता कि कल अपने पिता नूं पातशाह के दरबार च भेज दें। जब दूसरा दिन होया तो उसका पिता जिहड़ा वो पातशाह के दरबार चला गया रुका लैके। ते पातशाह ने उसनूं कहा कि भाई सवेर तो लैके शाम तक जो कुछ भी तू लै सकदा अपने घर च लै जा, ते शाम नूं सानू माफ़ी दे दें। जो कुछ असी तेरे कोलों लिया है, चीज़ तेरे को लभी है, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ कीमत नहीं दे सके, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ कीमत नहीं दे सकते। सवेर तो लैके शाम तक अपने घर विच लै जा जो कुछ लेना। फिर पछताया, दिल च सोचता है कि इहो जे ते मैं सैकड़े ही सुट देते है, हज़ारां सुट देते है, एक लाल दी इतनी कीमत। कबीर साहब जी महाराज भी ये मिसाल साड़ी है। कबीर साहब जी फरमाउंदे है, कहता हूँ क्या कहूँ क्या बजाऊँ ढोल, स्वासा खाली जात है तीन लोग का मूल। कबीर साहब जी फरमाउंदे है कि मैं की कमा, मैं ढोल बजावा, एक स्वास जेड़ा मालिक दी बंदगी तू जा रहा है, त्रिलोकी भी दी जाए तो वापस नहीं मिलता। देखो त्रिलोकी कितनी बड़ी हैगी, एक श्वास जिहड़ा है वापस नहीं मिल सकता। अगर ये श्वास मुल बिकन तो राजे महाराजे लै सकते हैं, बड़े बड़े शाहूकार अरबापति जिहड़े वो खरीद सकते हैं, लेकिन इसकी कोई कीमत नहीं। जो दादू साहब ने बाणी च फरमाया ठीक फरमाया है कि साडा जन्म जिहड़ा अमोलक, जिसकी कोई कीमत नहीं, असी इसनूं एवें ही खो के चले, कोई फायदा नहीं असी लिया। हाँ जी। क्या मुख ले हंस बोलिए दादू दीजे रोए, जन्म अमोलक अपना चलाया कारथ खोए।